Am I audible, beta? Yes, sir. So, Good evening, sir. Good evening. good evening, sir. Good evening, beta. Last lecture, what was the last part? So we did ortho effect. Ortho effect in benzoic acid, right? Yes. Yes, sir. Okay. So any doubts, any confusion? Guys, can you recall once I told you that acid plus base giving base plus acid? याद है ऐसा मैंने बोला था? मैंने Yes, बोला sir. था Yes, sir. Yes, sir. Conjugate acid base. हाँ, मैंने बोला था कि आप एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, ये स्टेटमेंट भूल करके अब याद रखना एसिड प्लस बेस गिविंग बेस प्लस एसिड। ठीक है, चलिए अब आप देखो, इधर मैं लिखता हूं कुछ। Just see this NaOH. NaOH has got Na plus and OH minus. Which part is basic part, Na plus or OH minus? The answer is OH minus. Any compound which is having H, OH minus may, abstract that H and may get converted into H2O. The remaining part, you just connect Na. तो ये हो गया एसिड प्लस बेस। ये एसिड था अपने लिए, ये यहाँ बेस था, ये बेस है, ये एसिड हो गया। जिसके पास H आएगा वो एसिड बन जाएगा। ठीक, इसी को आपने बचपन से याद रखा है, एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो थोड़ा चेंज करते हैं, Ha प्लस NaHCO3। बेटा ये कराया था लास्ट लेक्चर मैंने, रिपीट तो नहीं हो रहा है? हाँ सर, ये कराया था आई थिंक। किसी ने तो बोला कि ऑर्थो इफेक्ट वाज द लास्ट पार्ट। Yes, so ortho effect was the last thing we did. Yes, so ortho effect was the last thing. So you told us to write all O substituted benzoic acid stronger than benzoic acid. हाँ, but Except- somebody is saying कि we सर उससे पहले have एसिडिक done स्ट्रेंथ this करवाया last था। So starting में जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ करवा रहे थे तो आपने HNNH3 का लिया था to explain that the salt and water. हाँ सर। हाँ सर। You explained weak and strong bases and acids. Okay, just look at this. So here what is happening? Acid plus base. Acha, again, just whenever you think about any base, so they may give base in form of salt, right? So this is sodium bicarbonate. इसमें आप देखोगे तो जैसे NaOH में OH minus was the basic side, NaHCO3 में HCO3 minus is the basic part. So basic part is going to abstract this H from He. ठीक? So what acid do you get in the product side? H2CO3. And unfortunately H2CO3 breaks into H2O plus CO2. But ये अपने लिए important नहीं, अपने लिए important है H2CO3 because ये acid है। अब magical चीज, magical part is whenever you want to predict feasibility of acid-base reaction, whether reaction will move in the forward direction or backward direction, just compare the reactant of the acid with product of the acid. If reactant acid is stronger than product acid, the reaction will move in the forward direction. If the reactant acid is stronger than product acid, the reaction will move in the forward direction. क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही बेटा? Yes, sir. Yes, sir. That is why before doing this, we have done, that part how to compare acidic strength. पूरा हमने अच्छे से कर लिया। आपने को मालूम है कि दो कंपाउंड्स का कंपैरिजन करना हो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो वो कैसे करते हैं। तो अब एग्जाम में जो एक्चुअली में एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे बोलेगा कि 4 ऑप्शंस दिए होंगे और बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लिबरेट CO2 गैस फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन।
तो ये लैंग्वेज क्वेश्चन की देखो, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि वो एसिड बेस रिएक्शन की बात कर रहा है। दोबारा बोलता हूँ, वो 4 ऑप्शंस में 4 कंपाउंड्स दिए होंगे, ऑप्शंस में बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन लिबरेट CO2 गैस फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन का स्टाइल बहुत अच्छा है, बट सॉल्विंग का बड़ा आसान सा तरीका है कि जो भी कंपाउंड किससे ज्यादा एसिडिक हो बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट से नहीं, आफ्टर द रिएक्शन वी गेट H2CO3, तो H2CO3 से कंपैरिजन में आना चाहिए। ठीक है, मैंने एक बड़ा सा ऑर्डर आपको दिया था, अगर आप रिकॉल कर पाए उसको, ये हाँ मेरे सर। ख्याल से है ना, कुछ ऐसा था। और अगर नहीं लिखा हो तो H2CO3 को बीच में लिख देना बेटा, यहाँ पर आप दिया होगा, अगर नहीं भी दिया होगा तो आप यहाँ ऐड कर देना उसको। मेरे ख्याल से इस तरह का एक ऑर्डर दिया है आपको, बाकी आप देख लेना, पहले दिया हुआ है। मेरा पॉइंट समझ में आया बेटा कि क्या करना है? ठीक है, सो जस्ट कॉपी दिस पार्ट एंड राइट द स्टेटमेंट कि इफ रिएक्टेंट एसिड इज मोर एसिडिक देन प्रोडक्ट, that compound will be soluble in the given base. ठीक है, write this. If you have any confusion, you ask. सर आप वो स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हो क्या? इफ रिएक्टेंट एसिड इज, If left hand side acid is stronger than right hand side acid, then the given compound, given acid will be soluble in base. Sir, Done, beta? Should I remove this? So Yes, beta. actually, isn't water an amphoteric oxide? yes, sir. Amphoteric. So Yes, sir. what? So in the product, like we are You are saying ki why am I writing this H2O acid, right? Yes. Acha, you just answer one question. You are rich or poor? Will you be able to answer this question? Relative, sir. Yes. हाँ Yes. yes sir. Unless you're Ambani. Yes. Yes. अभी मुकेश अंबानी आपके सामने खड़ा हो जाएगा तो आप बोलोगे कि आई एम पुअर, रिलेटिव है ना, तो वैसी H2O की बात है। There are many substances जो दोनों behavior show करते हैं, that is a different thing. But even if you consider anything acid, it is relative term, right ना? हाँ, तो यहाँ पर हम लोग एसिड कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट साइड में यू हैव 2 substances, Na and H2O. Which one is having H plus? Answer is H2O. So that is why I am writing below H2O acid. So simple. 2 भिखारी सिग्नल पे खड़े, एक का कटोरा खाली है, एक के पास 10 रुपए है कटोरे में, कौन रिच हुआ? जिसके पास वो 10 रुपए। बस ठीक है सर। ठीक है बेटा। Should I remove सर एक this? बार वो स्टेटमेंट रिपीट करो। मैंने बोला था कि इफ लेफ्ट हैंड साइड, ये जनरल स्टेटमेंट है, इफ लेफ्ट हैंड, उसके बाद मैं क्वेश्चंस का स्टाइल बताऊंगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क। सॉल्युबल का मतलब रिएक्शन, हाँ, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का मीनिंग केवल यही है कि एसिड बेस्ड रिएक्शन, लैंग्वेज इसी तरह की आएगी आपको। सो मैंने बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन राइट side acid, then given acid, which is left hand side acid, is soluble in given base.
Then beta, should I remove this? Yes, Yes, sir. sir. अब आप इसको उस तरह से लिख लो, स्टेटमेंट वाइज। ये तो जनरल स्टेटमेंट था, आप ऐसा लिखो कि कंपाउंड HA will be soluble in NaOH solution. NaOH solution if HA is more acidic than NaOH or H2O. What will you say? H2. Yes. Many times students get confused. को लगता है कि HA NaOH से ज्यादा acidic है तो कर दो. No. The product which you are getting वो decide करेगा. तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट कि NaOH के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स पूछे जाएंगे आपसे. दूसरा, कंपाउंड HA will be soluble और इसका दूसरा लैंग्वेज स्टाइल क्या हो सकता है? Will be able to liberate what? CO2. CO2 gas from, ऊपर के लिए इन, from सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन. आपने देखा होगा स्पेशली जो आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे होंगे उनको ये रिएक्शन लिखाई जाती है. ये इससे कोई लेना देना नहीं. हाँ Yes, sir. हाँ, तो आप मेच्योर हो जाओ कि आपको हर तरह से डील करना आना चाहिए. तो वो तो अनस्टेबल इसलिए वो ब्रेक हो जाता है. हाँ, ये तो अब इसमें क्वेश्चन का स्टाइल वो कैसे भी पूछेगा, अपने को सॉल्व एसिड बेस वाली स्टाइल से ही करना है, ये माइंड में रखना है आपको. सो देयर कैन बी टू वेज फॉर द सेम क्वेश्चन कि HA is soluble or not in sodium bicarbonate solution, and another way is HA is able to liberate CO2 gas from sodium bicarbonate solution or not. ठीक है? So, Yes, बेटा. so in short, there should be forward reaction happening there. मेरे को समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा. कोई एक्सप्लेन कर सकता है बच्चे को? मेरे को सुना ही नहीं दिया एक्चुअली. Can So you there should be forward reaction happening, right, for it to be soluble. Yes. For solubility, forward reaction should happen. Shall I remove this? Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर. Acha. One more important point that is especially in the second case, CO2 gas is released, from sodium bicarbonate solution or HA solution. सोडियम बाइकार्बोनेट. Believe me, 90% स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं. सुनना ध्यान से. Which of the following compounds can liberate CO2 gas from sodiयम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन? ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है H2 या H2 नहीं, ऐसा लिखते हैं CH3SO3H. B में लिखा हुआ है CH3COOH. C में लिखा हुआ है ये, और D में लिखा है C2H5. अब कई बार बच्चों को क्या लगता है, या ऐसा हो जाए कि which of the following can liberate SO2 गैस? तो बताइए इनमें से कौन है जो SO2 गैस लिबरेट कर सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन? ए. Option A. ऑप्शन देखा, कचरा कर दिया. कोई गैस नहीं रिलीज करेगी SO2 गैस. कोई कंपाउंड रिलीज नहीं. CO2 रिलीज होती है ना, कि वो होगा या तो उसके अलावा कुछ नहीं होगा. नहीं समझ में आया? नहीं सर. तो फिर कौन सा एसिड? उनके पास सर जिस गैस से एसिड बनने वाला है वो रिलीज क्यों होगी? मतलब कोई भी रिलीज नहीं करेगा ना SO3. हाँ, वही तो क्वेश्चन आंसर बोला मैंने. किसी बच्चे ने बोला ऑप्शन ए, वो तो गलत हो गया ना. अरे भाई, CO2 गैस मैक्स टू मैक्स रिलीज हो सकती है. SO2 कहां से आएगी? SO2 कोई नहीं रिलीज करेगा. तो एक ऑप्शन जो नन ऑफ दीज होगा वो आंसर होगा. इसमें केवल CO2 रिलीज हो सकता है, और उसके लिए HA में CO होने की जरूरत नहीं है. ये रिलीज कर रहा है, वो तो पहले ही मैंने आपसे इसलिए क्लियर किया. तो व्हाट विल बी द आंसर हियर? None of these.
नहीं CO2 वाला, इसका आंसर क्या होगा? ओ सर ए होगा ना वो, ए होगा उससे सर। आगे ए होगा, होगा। बी होगा, ये होगा। देखो ना ये, ठीक है, यस। ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। तो हो सकता है कि वो और अच्छे से ऑप्शन बनाकर ए बी एंड सी ऑल ऐसा करके लिख कर देगा, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको आप चाहिए तो लिख लो, और यहाँ क्लियरली लिख देना नो गैस विल लिबरेट SO2 गैस। वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम में, वो चेहरा देख के हम SO2 निकाल देते हैं। Done, beta. Should I remove this? Yes, sir. Now, please listen. There are few important and special compounds. Like most of the time, we have said that H connected to carbon. H connected to carbon. इसका acidic strength कैसा रहता है बेटा? Poor. If you see your order which you have written earlier, इसमें that H connected to carbon कहाँ पर है? At the end वो alkane आता है. So that is poor acidic. ठीक है ना? Weak acid. But there are cases like this. ये दिख रहा है आपको बेटा? इसमें जो ये CH2 है, this CH2 is called active methylene. Why do we call this as active methylene? Even if it's connected to carbon, it is highly acidic. Why? Because when you remove H, the negative charge conjugate base is resonance stabilized. दिख रहा है बेटा? दो तरफ resonance हो रहा है इसका, right? इसको कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन. आपने पढ़ा है ना रेजोनेंस? नहीं है सर, लेकिन ये Sir, I didn't. तो थोड़ा सा So बोलिए। sp2 hybrid. नहीं सर, हमें बस बताया I बाद didn't में। know about resonance. नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ तुम्हें टीचर ने पढ़ाया है, मैंने बोला है कि तुमको मैंने पढ़ने के लिए बोला था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में. हाँ सर, रेजोनेंस पढ़ा, लेकिन ये नहीं समझ में हाँ आया वही कि सर। कैसे तो ये क्या जो हुआ। कॉन्जुगेशन वर्ड का मतलब रेजोनेंस है. अब आप ध्यान से सुनो कि मैंने आपको इतना तो उसका एच निकाल दो और कॉन्जुगेट लिखो, और उस सर कॉन्जुगेट आपकी आवाज क्रैक हो गई। सर, आप रिपीट कर सकते हो? हाँ सर, आपकी आवाज गई। आई रिपीट, आई सेड कि मैंने ये आपको बताया था कि इफ यू वांट टू चेक वेदर अ कंपाउंड इज एसिड और नॉट, you remove H from their right conjugate and check stability of that conjugate. इतना याद है? हाँ हाँ सर। Now, how do we check stability? तो उसका आंसर था dispersion. याद है? Dispersion. जितना चार्ज डिस्पर्स्ड हो जाएगा उतना वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. पर आपसे एक घरेलू एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था कि अगर आप पिकनिक पे जाते हैं तो पेरेंट्स यूजुअली क्या बोलते हैं कि सारा पैसा जो है वो एक पॉकेट में मत रखना, जितनी पॉकेट्स है सारे पॉकेट्स में तुमने पैसे हाँ, रख सर। लिए. तो इसको डिस्पर्जन कहते हैं कि मान लीजिए किसी ने चोरी करने के बारे में सोचा भी, तो मैक्स टू मैक्स एक पॉकेट जाएगा, दो पॉकेट जाएगा. लेकिन अगर सारा पैसा एक ही पॉकेट में रख लिया तो प्रॉब्लम क्या है? एक साथ आप डिस्टेबलाइज हो जाओगे. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, हाँ sir. सर।
तो Yes. उसको कहते हैं डीलोकेलाइजेशन, एंड रेजोनेंस वही कराता है, डीलोकेलाइजेशन। तो लोन पेयर सिंगल डबल, याद है ऐसे केसेस तुमने रेजोनेंस के लिए पढ़े होंगे। डबल सिंगल डबल अगर कहीं दिखता हाँ है तो सर, दोनों के रेजोनेंस बीच होता का है। बॉन्ड बन जाता है। लोन पेयर सिंगल डबल दिखता है तो रेजोनेंस होता है। डिस्पर्जन मतलब लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल तो भी रेजोनेंस होता है। कहीं पर एम्प्टी ऑर्बिटल सिंगल डबल होता है तो भी ये रेजोनेंस के केसेस होते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद हो तो लोन पेयर सिंगल डबल, देखो रेजोनेंस दिख रहा है, यानी ये लेफ्ट की साइड भी रेजोनेंस जा रहा है और लोन पेयर सिंगल डबल राइट की साइड भी, यानी कि इसके दो फ्रेंड्स हो गए, आप ऐसा भी विजुलाइज कर सकते हो। तो ये ज्यादा जिंदगी में खुश हो गया, डिस्पर्स्ड हो गया इसका चार्ज, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। जितना कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज होगा उसका पेरेंट एसिड उतना ज्यादा एसिडिक होगा। क्या स्टेटमेंट या पॉइंट समझ में आया मेरा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये जितना भी मैंने अभी बताया है, क्योंकि ज्यादा बोल दूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इतना आप लिख लो, है ना, कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एक स्पेशल कंपाउंड है। स्पेशल क्यों बोल रहे हैं कि नॉर्मली एच कनेक्टेड विद कार्बन इज पुअर एसिड, बट दिस इज अ स्पेशल केस वेयर वी हैव एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन क्या होता है कि अगर कोई CH2 हो जिसको मिथाइलिन कहा जाता है, उसके लेफ्ट और राइट साइड में ऐसे ग्रुप्स लगे हों जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। कैसे ग्रुप हो बेटा? Electron withdrawing. withdrawing. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और नॉर्मल तरीके से विड्रॉ नहीं करते हो, वाया रेजोनेंस विड्रॉ करते हैं। और वो रेजोनेंस से विड्रॉ तभी हो पाएगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वो कर रहा है। आई होप थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं। दिस इज हाईली एसिडिक। फिर मैंने एक्सप्लेन किया व्हाई, तो मैंने बोला राइट द कॉन्जुगेट बेस, check stability, it is getting stabilized by good cross conjugation, that is why its parent is acid. Copy कर लो बेटा। So, Yes बेटा। so does it only depend on conjugation, or can we say that as the hybridization increases, it becomes more acidic? What increases? The hybridization. Because now it's Hybridization. sp2. Did I tell you that Resonance. hybridization concept? Why No, are you sir. using hybridization concept here? This is not your doubt, beta. You are putting extra thing. Quickly copy out, everyone. हाँ सर. देखो, we all know we are doing things in a क्विक मैनर, तो उसमें फटाफट चीजें होंगी, तो थोड़ा सा आपको अपना अटेंशन, क्वेश्चंस कम रखिए अपने। जो मैं बता रहा हूँ उस पे डाउट्स पूछो, रादर देन की क्रिएटिंग डाउट्स, उसको अवॉइड करो, ठीक है? क्योंकि मैं आपको मेन मेन चीजें बता रहा हूँ, वो अगर आप ग्रास्प कर पा रहे हो तो कंटिन्यू करना है, और उस पे डाउट्स पूछ लो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो। Should I remove this? Yes. Yes, sir. Okay. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और इसकी खास बात ये है कि इसका पीके जो है ना, इसका पीके ये कितना कुछ 5 के आसपास इसका पीके है। अप्रोक्सीमेट कर देता हूं मैं, आप इसको 5 लिख लेना पीके। और पीके याद है ना, मैंने एक्सप्लेन किया था, CH3COH। सोचिए खानदानी एसिड है CH3, इसका नाम ही एसिटिक एसिड है, तो इसका पीके जो होता है वो 4.75 होता है। सो यू कैन सी कितना क्लोज आ गए दोनों। जबकि अगर मैं तुम्हें उसका पीके बताऊं, क्या बोलते हैं, मीथेन का, मीथेन इज एन एल्केन, एकदम
बेकार सा एसिड है, इसका पीके होता है अप्रोक्सीमेटली 48। नाउ यू कैन इमेजिन कितना डिफरेंस है। ये भी एक एल्केन की कैटेगरी का है, H कनेक्टेड टू कार्बन, बट यू कैन सी द डिफरेंस। ठीक है, जितना पीके कम होता है उतना ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होता है। इज इट क्लियर बेटा? यस। अब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एसिड बेस का, हो सकता है तुम एग्जाम में मिल जाए। बेटा केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लिया? Yes. हाँ Yes, सर। हाँ नहीं सर, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ अब तक। चलो कोई नहीं। हाँ सर पढ़ लिया। इसका नाम है मैलेइक एसिड। कभी नाम सुना है बेटा? हाँ सर, मैलिक सर एसिड एप्पल में। एंड क्रेब्स साइकिल में भी होता है। इसका सर आइसोमर भी होता है। अरे वाह, यही बस इतना ही तो चाहिए था मेरे को। तभी सिलेक्शन होगा बेटा। कुछ फ्यूमेरिक आप एसिड। करके आओगे, कुछ मैं बताऊंगा तो वो ऐड होगा। फ्यूमेरिक एसिड इसका नाम। फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, ये एक्चुअली आइसोमर्स होते हैं, इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। लेकिन ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताना, वो तो किसी बच्चे ने Cis आइसोमर्स and बोल दिया। trans. अरे वाह, फिर तो मैं खुद ही लिख देता हूँ, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, जितना आप ज्यादा समझ लोगे कम टाइम में उतने मेरे लिए अच्छी बात होगी। तो एक सिस और एक, ये मतलब नहीं था मेरा। मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है। ये जो कंपाउंड है ना, इसके पास बता सकते हो कितने एसिडिक एच है बेटा? देख के कॉमन सेंस। सर चार। दो तो इनको एसिडिक एच नहीं बोला जाता बेटा। नहीं बोले जाए। एच कनेक्टेड टू दो। ओ जब अवेलेबल है तो उसी को एसिडिक एच माना जाएगा। तो इसका जो पीके, अच्छा इसका मतलब इसके बाद दो पीके होंगे। एक को बोलते हैं पीके 1, एंड इसका जो पीके 1 होता है उसका वैल्यू होता है 1.9, और जो पीके 2 होता है उसका वैल्यू होता है कुछ इतना। ऑल्दो वैल्यूज रटना नहीं है आपको, मैं केवल डेटा दे रहा हूं सो दैट कहीं कुछ और लिखा हो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बता पाए कि हम सही हैं। ये पीके इसका रहता है 3.03, और पीके A2 होता है इसका 4.44। यू जस्ट आंसर माई वन क्वेश्चन कि आउट ऑफ दीज टू whose first acid is या मैं ऐसा पूछूं कि which one is better acid, ऐसे सीधे सीधे, या फर्स्ट एच इज मोर एसिडिक, मैलिक और फ्यूमेरिक? Malik. फर्स्ट एच मैलिक। सर मैलिक का ज्यादा है। मैलिक, बट सेकेंड एच इज मोर एसिडिक फॉर Turmeric. ये जो मैंने अभी अभी आपको बोला ना, इसको तुम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो और एंड में लिख देना वाई। मेरा पॉइंट समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन इस तरह का तुम्हें आएगा एग्जाम में कि देयर आर टू एसिडिक एच इन बोथ मैलिक एंड फ्यूमेरिक। First H of malic is more acidic than first H of fumaric acid, while second H of fumaric is more acidic than second H of malic. हो गया बेटा?
हाँ सर. Now, explanation. The basic concept, which we have done every time, whenever we want to compare the acidic strength of the two compounds, we write conjugate of both and then we check the stability of conjugate. इतना सबको clear है बेटा? Yes, sir. So just remove one acidic H and write conjugate. A का भी बचा लेंगे इसमें. Same manner में I will do here. ये ऐसा. Now just see. After removing one H, you can see the minus charge. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको आनी चाहिए. ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये किसको स्टेबलाइज कर रहा है बेटा? कॉन्जुगेट बेस ऑफ मैलिक एसिड और कॉन्जुगेट बेस ऑफ फ्यूमेरिक एसिड. बताइए. Malic acid. आप हाँ जी. अच्छा, कई बच्चे सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम खुद ही अपने हाथों को, दोनों हाथ को एक तरफ रखो और एक बार ऐसा, किसमें हैंडशेक कर पाओगे? तो कॉमन सेंस है ये वाले में, है ना? ये ट्रांस पोजीशन पे, अपोजिट पोजीशन पे, तो इनके बीच में इंटरैक्शन निग्लिजिबल है, जबकि इस वाले को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं. तो अगर तुमने ये वाई लिखा है यहाँ पर, तो उसका आंसर है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ मैलिक एसिड. इतना लिख लो पहले. So can you repeat? You are just explaining this why. So I'm saying the hydrogen bonding in the conjugate base of malic acid is responsible for greater stability. लिख लिया. लिख लिया ना. अब आते हैं सेकेंड पार्ट में कि वाई द सेकेंड एच इज मोर एसिडिक फॉर फ्यूमेरिक. तो उसका आंसर भी यही है कि बिकॉज नाउ दैट एच, सेकेंड एच ऑफ मैलिक एसिड is connected by, attracted by O minus due to hydrogen bonding, release of this H becomes difficult. The second H release becomes difficult in malic acid, while in fumaric acid it is free. समझ में आया क्या मेरी बात बेटा सबको? Yes. हाँ सर. तो वो लिख लो आप. और देखो, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करना है बेटा, हल्का फुल्का आइडिया. आपको ऑप्शंस तो वहां रहने ही वाला है ना. उसमें कुछ मैलिक फ्यूमेरिक आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया, तुम तुरंत स्ट्राइक करेगा, अच्छा दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन, बस हो जाएगा. So can you repeat the last statement that you said? I said beta ki the second H of malic acid is attracted by oxygen O minus due to hydrogen bonding. So release of this H becomes difficult. While in fumaric acid, the second H is free. So can you repeat once more? कोई बेटा एक बार बताएगा इसको? Anyone? Second H of malic acid is connected to O minus due to H bonding, hence its release is difficult.
सर मतलब पहले इसमें पहले हाइड्रोजन का कॉन्जुगेट ज्यादा था मैलिक एसिड में, इसलिए वो ज्यादा है और उसका कम है पीके वैल्यू। और सेकेंड इसमें वो ज्यादा फ्रीली जा सकता है फ्यूमेरिक एसिड का हाइड्रोजन, इसलिए उसका कम है पीके वैल्यू। Yes. It's because the first one they are closer to each other. The second one. Shall I remove everything? Perhaps आप लोगों ने शीट सॉल्व किया होगा जो मैंने दिया था. Now I will give you questions related to all these points. ठीक है? Now, listen. We have completed the acidic strength part. Now, basic strength of compounds. And believe me, most of the thing we have already done. कब कब किया है बेटा हमने ये? जब एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर रहे थे तो एवरी टाइम हमने क्या बनाया था? कॉन्जुगेट बेस. सो फर्स्ट वी एक्चुअली कंपेयर्ड कॉन्जुगेट बेस एंड उसका ऑपोजिट ऑर्डर वाज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पेरेंट. सो ऑलरेडी वी हैव डन द बेसिक स्ट्रेंथ पार्ट. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? Yes. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा बताओ ये फिनॉक्साइड आयन है और ये एसीटेट आयन है, which one is stronger base? What will be your answer? इसको आप दो तरीके से कर सकते हो. दो तरीके इसके हैं, एक कॉन्सेप्ट और एक है कॉमन सेंस. इसका पेरेंट फिनॉल था, इसका पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड था. तो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? फिनॉल. Carboxyl. कार्बोक्सिलिक होता है. कॉमन सेंस भी है बेटा. कार्बो एसिड तो खानदानी है. मान लो किसी को ना भी मालूम हो, खाली अंबानी पता चल रहा, तब भी कोई ऐसा फीलिंग आएगा कि वो अमीर है. तो वैसे ही जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा है बेटा, वो रेयरली इधर उधर होगा. फिनॉल तो नाम में ऐसा कुछ आ ही नहीं, उसका सरनेम ही छिपाना पड़ रहा है उसको. तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर है. तो उसका उल्टा आप यहाँ बोल दो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? Phenol is more stronger. फिनॉल नहीं, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन. फिनॉक्साइड आयन और इसका नाम है एसीटेट आयन. देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, आपको आंसर निकालना आना है अभी के लिए, बिकॉज हमको कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करनी. तो मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ टू गेट करेक्ट आंसर. सिंस वी आर अवेयर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, so we can use that concept in finding other answers like basic strength. I hope मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी. ठीक है? तो Yes. इसको तुम क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो और उसका एक्सप्लेनेशन जो अभी हम लोगों ने निकाला उसको लिख लो. लेट मी नो अगर कर लिया. Sir, done. देखिए बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एमाइंस के लिए पढ़ते हैं. किसके लिए पढ़ते हैं बेटा? एमाइंस के लिए. इस पे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं. सो एमाइंस में क्या हो, एमाइन समझते हैं बेटा?
NH2 इसको कहते हैं प्राइमरी एमाइन। याद करो, ये बताया होगा। Yes. हाँ और फिर अगर दो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, देन वी कॉल दिस एज सेकेंडरी सेकेंडरी एमाइन। एंड फिर 3 R इसमें लग गए तो इसको बोलते हैं टर्शियरी टर्शरी एमाइन। ठीक है, ये 3 एमाइंस हैं और एक अमोनिया होता है। ये क्वेश्चन 2 स्टाइल से पूछा जाता है। वन इज बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर इन gaseous state, गैस फेज। सो उसका आंसर है, मैं एग्जाम्पल के साथ ले रहा हूं, दैट इज बेटर। CH3 होल थ्राइस n ग्रेटर देन CH3 होल ट्वाइस NH ग्रेटर देन CH3 NH2 ग्रेटर देन NH3। सबसे ज्यादा बेसिक किसको बता दिया बेटा? अच्छा, ये जो मैंने स्टार्ट किया था बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ाया था मैंने ये सब में, जो नॉमेनक्लेचर के बाद मैंने बताया आपको? व्हाट वाज द फर्स्ट पार्ट? डिड आई टेल यू एनीथिंग अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट? Yes, sir. इंडक्टिव इफेक्ट मैं बताया था आपको। हाँ सर बताएं। सो आप ध्यान से देखो, क्या मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताया था याद रखने के लिए कि ऑल द ग्रुप्स आर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स एक्सेप्ट। हाँ सर, हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन बस बस उतना ही मुझे चाहिए था। मुझे लगा कि मैंने नहीं आपको बताया तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। तो ये बताइए, देखो जब भी क्वेश्चन आएगा बेसिक स्ट्रेंथ, तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा वो बेस क्यों है। घरेलू एग्जांपल मैंने शायद पहले भी दिया है कि दो लोगों को अगर पता करना हो कि इन दोनों में से ज्यादा रिच कौन है, तो पहले तुम्हें ये पता करना पड़ेगा इनको रिच क्यों बोला जा रहा है। जब तुम्हें ये नॉलेज हो गई कि इनको रिच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, तो तुम्हें रिच कौन ज्यादा है ये चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा बेटा? कि किसके अकाउंट में ज्यादा पैसा है। सिंपल चीज है ना? सेम मैनर में यहां पर जब तुम्हें बोला गया कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस या रिलेटिवली, तो आपको केवल ये चेक बताना है पहले कि इनको बेस क्यों बोलते हैं। तो लुईस बेस एसिड याद है सबको? तो उसमें ये लोन पेयर प्ले करता है, यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल डिसाइड द बेसिक स्ट्रेंथ। क्या सबको मेरा पॉइंट समझ में आया बेटा? तो जस्ट चेक द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी of this nitrogen because nitrogen is the basic site in all cases. So सबके पास एक एक लोन पेयर है, तो ideally all should be equally basic, but इनके फ्रेंड्स देखो कौन है। इसके पास इलेक्ट्रॉन पुशिंग वाला ग्रुप है बिकॉज एल्काइल ग्रुप है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पुशिंग वाला ग्रुप है, इसके पास भी, इसके पास नहीं है। बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास हो गई? फर्स्ट वाले के पास हो गई क्योंकि उसको सब पुश करके दे। तो क्या तुम्हें समझ में आया ये ऑर्डर मैंने लिखा सही है? हाँ यस सर। ठीक है, सो पहले इतना कॉपी कर लो। दिस इज द इजीएस्ट पार्ट।
हो गया? Yes, sir. So it is very easy to find answer here, and if you want in a general manner, you can say R3N greater than R2NH greater than RNH2 greater than NH3. Because every time you can see R is alkyl group, and if there are 3 alkyl groups surrounding this nitrogen, then more will be plus I effect and more will be the electron density on nitrogen. And that is why a more basic, simple explanation. Clear? But the difficulty of the question is when the question says aqueous medium. बताइए बेटा एक्वस मीडियम में किसका इफेक्ट आ जाएगा पिक्चर में? कोई बताएगा? मेरे को आवाज सुनाई नहीं दी. किसका इफेक्ट आएगा? वाटर. वाटर का. इसीलिए तुम आंसर प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे. इट्स नॉट इजी. तो मैं आंसर लिख देता हूं, फिर हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा. अगर समझ में आया तो गुड, अदरवाइज उसको तुम वहीं पर छोड़ देना और केवल ये आंसर याद कर लेना. बिकॉज दे विल आस्क, और बहुत चांस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे आ जाए. ठीक है, इसीलिए ये बताना जरूरी है. पता चला खूब सारा पढ़ लिया, लेकिन वो जो क्वेश्चन आने वाले वो हमने किए ही नहीं. सर ये C2H5 से ऑर्डर कंटिन्यू हो रहा है या सारे अलग अलग ऑर्डर से? बस अच्छा, नहीं अलग अलग होगा. ऑल्दो एनसीईआरटी में केवल ये दो दिए हुए हैं, तो 99% यही पूछेगा. लेकिन मैं तुमको रटने वाला स्टाइल ऐसा बता दूंगा कि तुम्हें कुछ और कुछ भी आ जाए तुम कर लोगे, ऐसा है. सर ये तो बस मिथाइल इथाइल प्रोपाइल मतलब इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. यस यस, वी आर जस्ट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. गाइस, इस ऑर्डर की खास बात ये है कि जितने भी एग्जांपल्स आप लिखोगे सब में सेकेंडरी एमाइन नंबर 1 है. क्या आप देख पा रहे हो? इन ऑल एग्जांपल सेकेंडरी इज नंबर 1. तो यानी अगर मुझे जनरल भी लिखना होगा तो मैं सेकेंडरी एमाइन तो पहले डाल दूंगा. प्रॉब्लम किसके साथ है बेटा? कहां आंसर बदल रहा है? क्या विजिबल है? अमोनिया अभी लास्ट में, इसमें भी है, इसमें भी, सब में लास्ट में आ रहा है. यहां आंसर बदल रहा है. तो याद रखने का स्टाइल देखो, केवल इसको छोड़ दो, इथाइल. इन ऑल अदर केसेस सेकेंडरी के बाद किसको लिखना है? प्राइमरी एमाइन. फिर आएगा टर्शरी और फिर आएगा अमोनिया. इसमें इन दोनों में ऑर्डर बदल जाएगा. केवल कहां पर बेटा? बाकी सब में ये ऑर्डर रख लो. दैट इज इट. ठीक है? यस सर. इसको हटा दें बेटा. So one नहीं सर, 2 मिनट. सर वो लास्ट वाले में जो सेकंड वाला है वो CH3 CH2 CHNH2 है. लास्ट थर्ड वाले में CH3 CH2 CH2 है. अच्छा, उसके नेक्स्ट वाले में CH3 CH2 CH4 सब में एक NH2. जैसा है बेटा, सब में ये एल्काइल पार्ट सेम होगा. नहीं सर, मैं सर वो NH वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ आपने 2 अभी अंडरलाइन किया. हाँ सर, ये वाला NH2 NH2 है.
Okay. क्योंकि अगर एक एल्काइल होगा तो NH2 ही आएगा. Yes, sir. सर हो गया. हो गया. देखो, मैं आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस इन अ क्विक मैनर. अगर आपको समझ में आ गया तो वेरी गुड, नहीं तो इसको इग्नोर कर देना और उसको याद कर लेना. ठीक है बेटा, क्योंकि हमें कम टाइम में बहुत सारी चीजें करनी है. ध्यान से देखो, CH3NH2 लिखा मैंने, इसमें इसको पानी में डाला तो बेस क्या होगा बेटा? बेस का काम है H+ ले लेना, यानी ये क्या बन जाएगा बेटा? NH3+. इसको क्वाटर्नरी बोलते हैं, जैसे NH4+ होता है ना, उस स्टाइल का. और साथ में क्या निकला? OH-. इसी तरह इमेजिन करो कि मैं लिखता हूं CH3, या पहले बीच वाला भी लिख ही देता हूं इसमें, CH3. मैं आज थोड़ा रेजोनेंस वाली चीज भी कराऊंगा, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनको नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आई विल ट्राई कि कुछ थोड़ा बहुत उनका भी काम हो जाए. देखो, इसमें भी वही चीज कराऊंगा, बट डिफरेंस क्या है? इसके पास एक H कम है प्रीवियस केस के कंपैरिजन में. क्वाटर्नरी यहां भी बन रहा है. थर्ड वाले में जब बात करोगे ना, ऐसा ये भी H2O से H+ ले लेगा. इसको लिखने में किसी को इश्यू तो नहीं है बेटा? ये क्लियर है जो मैं कर रहा हूं? सामने दिख रहा है? क्लियर है ये सब क्या हुआ, कैसे लिखा मैंने H+ वगैरह N+? हाँ Is it सर, वो clear? सब तो समझ. हाँ सर. यस सर. अब आप ध्यान से सुनो, जैसे ये प्लस आता है ना, इसको इमीडिएट एक्वस मीडिया में ना वाटर सराउंड कर लेता है. फटाफट वाटर, इसको भी वाटर सराउंड करता है. हाइड्रेशन. इसको, अरे वाह, वेरी गुड बेटा, इसको कहते हैं हाइड्रेशन, और इसका जनरल नाम है सॉल्वेशन. सॉल्वेशन है. अब आप ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है. जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा वो वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा. एम आई क्लियर? यस हाँ सर. हाँ सर. प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, वो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. एम आई क्लियर? यस सर. यस. रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, वो ज्यादा OH- बनाएगा. एम आई क्लियर? Yes. हाँ. यस सर. ज्यादा OH- बनाएगा, वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, मतलब कंपाउंड. इज इट क्लियर? यस. यस सर. इसमें हमने जान लिया. नाउ द ओनली क्वेश्चन इज हुज हाइड्रेशन इज मैक्सिमम. तो उसका आंसर ये है कि ये जो पहला वाला है ना, इसके साथ 3H+ लगे हुए, 3H है मतलब, तो जो वाटर का ऑक्सीजन होता है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. ऐसा, उसके पास O है, इसके पास H है. इधर देखो, उसके पास O है, इसके पास H है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसके पास H है और वाटर के पास ऑक्सीजन है. तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है. इसमें कितनी आ सकती है बेटा मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 2. 2. इसमें कितनी आ सकती है? 1. 1. राइट ना? तो आउट ऑफ these 3 cations, whose cation is more stable? CH3NH2 most stable. That is why as per, इसको कहते हैं हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट. As per hydration, the order of basic strength should be बोल रहा हूं, सही है कि नहीं वो तो 2 सेकंड बाद पता चलेगा. ऑर्डर शुड बी क्या होना चाहिए बेटा? फर्स्ट. 2, 3, 1. लेकिन
एज पर इंडक्टिव ऑर्डर क्या है? इंडक्टिव तो हमेशा ही लगता है, ऐसा थोड़ी ना पानी में डाल दोगे तो इंडक्टिव खत्म हो जाएगा। एज पर इंडक्टिव ऑर्डर क्या है बेटा? पुराना। हाँ सर, थर्ड वाला। इसके पास ज्यादा एल्काइल, वो ज्यादा बेसिक। ये पुराना ऑर्डर है ना। समझ लेना, बीच में ये मत बोलना कि ये क्या लिखा है सर, ये छोटी मोटी चीजें आप समझ लो, लिखते समय सुन लो, फोकस्ड रहना बेटा। हाँ, नहीं तो छोटी छोटी चीजें फिर पूछना चालू कर देते हैं कि सर ये एन क्या है, एन के बाद क्या लिखा, पहले क्या लिखा, वगैरह वगैरह। ये ऑर्डर है एज पर इंडक्टिव इफेक्ट, ये ऑर्डर है एज पर हाइड्रेशन इफेक्ट। कैन यू सी, दोनों अपोजिट ऑर्डर है। हाँ सर। अब मैं आपको एक घरेलू एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि एक एग्जाम होता है जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 2 बच्चे एग्जाम देते हैं। तो किसी एक बच्चे का एक सब्जेक्ट बहुत ही खराब है, दूसरा बहुत अच्छा है, ठीक है। किसी एक बच्चे का उल्टा वाला है कि वो वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, और कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके सब सब्जेक्ट मॉडरेट है। किसकी रैंक ज्यादा आने की चांसेस है? मॉडरेट मॉडरेट वाले की। मॉडरेट वाले का। इसका फायदा उठाता है ये कहता है मेरा हाइड्रेशन भी खराब नहीं है और मेरा इंडक्टिव भी खराब नहीं है। देखो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर वही लिखा हुआ है, इसके पहले वाले पेज में लिखा था ना मैंने, ये देखो। हर किसी एग्जाम्पल में तुमको सेकेंडरी पहले मिलेगा, क्योंकि उसका हाइड्रेशन भी अच्छा है, और उसका उसका नहीं मतलब उसके कैटायन का, और उस पर इंडक्टिव इफेक्ट भी ठीक लग रहा है, इसीलिए वो नंबर 1 है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दिस पेज, नो इश्यूज। सर समझ आया सर, अच्छे से समझ। समझ में आया इजी था सर? सर ये। दोबारा पूछना बेटा, समबडी इज आस्किंग समथिंग। कॉपी करो इसको। सर मुझे सब समझ में आया, बस वो फर्स्ट प्रोडक्ट कैसे बना है CH3NH वो वाला बता सकते? कौन सा बेटा, दोबारा बोलना। सर फर्स्ट रिएक्शन में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है, हाँ, हाँ वो कैसे बना? इस NH2 को H2O ने अपना H प्लस दे दिया, तो इसके पास 3 H आ गए एक प्लस के साथ। अच्छा सर। हो जाए तो बताइए बेटा।
Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. So I tried to explain things. अगर आपको समझ में आया तो it's good. नहीं तो ये जो मैंने यहाँ लिखा है वो आप याद रखना. That will be enough for you. ठीक है, इसमें और भी चीज बताना है. मैंने ज्यादा केवल ये बताया why secondary is number 1. बीच वाली चीजें मैंने स्किप की हैं. ठीक है, वो जब नॉर्मल रेगुलर लेक्चर्स होंगे तब ये सब डिस्कशन में आएगा. ठीक है, अब आते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अच्छा, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा रेजोनेंस का वो सुन लें, और बाकी लोग भी हल्का फुल्का देख ही लें. रेजोनेंस अपने लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं डीलोकेलाइजेशन. डीलोकेलाइजेशन तो डीलोकेलाइजेशन कब होगा और किसका होगा? तो बोला जाता है कि वेनेवर, इसमें केसेस हैं बेटा. जैसे मान लो केस 1 में ऐसा एग्जांपल लिखता हूं, डबल सिंगल डबल. वेनेवर यू हैव ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है और इसको बोलते हैं पाई इन कॉन्जुगेशन विद पाई. ऑल्टरनेट को कॉन्जुगेशन बोल रहे हैं. So pi और only इसका Greek symbol and not the number. क्या बेटा? Here pi we are only putting because Greek symbol and not because not because the number. It's because of pi bond. Are you aware दो of टाइप pi के bond बॉन्ड्स and होते हैं, sigma सिग्मा bond? और पाई. सिग्मा पाई वाला. वो वाला पाई है, 3.14 वाला पाई सिग्मा पाई नहीं. वाला. Yeah, that. हाँ, सिग्मा पाई वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं. डोंट गेट इमोशनल. ये डबल सिंगल ये दिख रहा है. तो बेंजीन इज द बेस्ट एग्जांपल वेयर यू कैन सी पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड. ठीक है, इट कैन बी ट्रिपल सिंगल ट्रिपल, इट कैन बी डबल सिंगल ट्रिपल, एनीवन, बट पाई पाई होना चाहिए. फिर केस 2 आता है. केस 2 में क्या होता है बेटा? लोन पेयर सिंगल डबल. इसका एग्जांपल क्या है? बेंजीन रिंग में तो पहले से डबल डबल था, अब इसमें NH2 लगा दो तो यू कैन सी NH2 का जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल. कैन यू सी? तुम्हें रेजोनेंस दिख रहा होगा. बाद में एक्सटेंडेड है, बट इतने से आपको पता चलेगा यस देयर इज रेजोनेंस. क्या समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. अब केस 3 देखो. केस 3 में आता है लोन पेयर जिस भी एटम पे उस पे नेगेटिव चार्ज भी है, एंड देन कॉन्जुगेशन किसके साथ है? पाई बॉन्ड के साथ. इसका बेस्ट एग्जांपल फिनॉक्साइड आयन. इसको एनिलीन बोलते हैं बेटा. इसको क्या बोलते हैं? सर फिनॉक्साइड अजाइड आयन है. में भी ये होगा ना? अच्छा, इसमें फिनॉल में भी. फिनॉल किस केस में आएगा? फिनॉल आएगा इस केस में, सेकेंड. हाँ, केस 3 हो गया. अब आते हैं केस 4 पे. केस 4 में क्या होता है कि देयर इज एन एटम जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है. ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, एंड देन देयर इज पाई बॉन्ड लाइक दिस. तो नॉर्मली कार्बन के ऊपर जब प्लस आता है तो उसके ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल हो जाता है उसके पास, मतलब. तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें आप ये केस 4 दिखा सकते हो. CH2 double bond CH, single bond CH2 plus. So whenever carbon is having positive charge, it means carbon is having empty orbital. तो empty single double. क्या आप एग्जांपल समझ पाए बेटा? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. फिर आता है केस 5. केस 5 में ऑड इलेक्ट्रॉन. ऑड इलेक्ट्रॉन कहने के लिए ऑड है, बट 1 होता है केवल, इतना मान के चलना. दैट मीन्स एटम इज हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन, देन देयर इज सिंगल बॉन्ड, देन देयर इज डबल बॉन्ड. इसका एग्जांपल क्या है? CH2 डबल नहीं, CH सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ आएगा CH2 हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन. आप ध्यान से देखो, ये है ऑड सिंगल डबल, मतलब यहाँ पर 3 एटम्स इन्वॉल्व है, तब जाकर उसमें रेजोनेंस हो रहा है. एक एटम के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन और बाकी 2 एटम्स आपस में पाई बॉन्ड वाले हैं. ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल. इसका नाम है एलाइल फ्री रेडिकल. नाम रटने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल दिया इसलिए मैंने नाम लिख दिया, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं. इसी तरह एक सिमिलर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं, क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे? ऑड सिंगल डबल, ऑड सिंगल डबल. पूरा बोलने की जरूरत नहीं है,
ऑड सिंगल डबल, इस खाली याद रखना है कि हाँ भाई इसमें रेजोनेंस दिख रहा है, इसका नाम है बेंजाइल फ्री रेडिकल। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है, दैट इज केस 6। व्हाट इज दैट? देयर इज एन एटम एम्प्टी ऑर्बिटल एंड द नेबर इज हैविंग लोन पेयर। मतलब ऐसा लग रहा है कि भिखारी का फ्रेंड मुकेश अंबानी है, तो भिखारी कभी भिखारी रह ही नहीं सकता, नाम के लिए भिखारी होगा, लेकिन उसको इतना स्ट्रांगली पड़ोस से पैसे मिल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे कि इसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। तो इसको कहते हैं हम लोग जो 6 की, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? CH3 O पे लोन पेयर है और उसके पड़ोस में कार्बन है जिसके ऊपर प्लस है। तो आप देख पा रहे हो 6th केस रेजोनेंस। इसको केमिकल बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। हाँ सर, बैक। हाँ सर। रेजोनेंस बोल रहा है। हाँ, केमिकल बैक बॉन्डिंग देखो ना, वही तो है ना कि पिछले दरवाजे से जो भिखारी को पैसे दिए जा रहे हैं, आप ऐसा सोचो, ठीक है ना। ये 6 केसेस है। एक और केस है बट अभी आपको बता नहीं रहा हूं मैं। ये अब डीलोकलाइजेशन वर्ड क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज जिसके पास नहीं है उसको मिल जाएगा। एक जगह से दूसरी इलेक्ट्रॉन जगह कोई चीज डिस्ट्रीब्यूशन। जा रही है उसको डीलोकलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा लिखा होता, ऐसा, तो यहां पर क्या रेजोनेंस हो रहा है? तो आंसर है लोन पेयर सिंगल सिंगल, नो रेजोनेंस। दैट मींस लोन पेयर इज टोटली ऑन नाइट्रोजन, इसको कहेंगे लोकलाइज्ड। While when you write benzene ring, the same lone pair of nitrogen is in resonance. That means it is moving inside. जहां नहीं है वहां दिया जा रहा है, तो इसको क्या वर्ड देंगे बेटा? Delocalized. अगर मैं तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं, whose electron density is greater, nitrogen of this or nitrogen of this, what will your answer? सर पहला। सेकेंड। फर्स्ट वाला। अरे ग्रेटर नाइट्रोजन पे तेरा पैसा कोई लिए ले रहा है, तेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया अच्छा ना हाँ बेटा। सर। हाँ, तो अगर आप सोचो तो विच वन इज मोर बेसिक, लोकलाइज्ड नाइट्रोजन लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज। लोकलाइज्ड। बस मेरे को इतना बताना था, इस चक्कर में मैंने इतना सारा बताया। तो जिनको रेजोनेंस नहीं आता वो भी कॉपी कर लें, उनको भी अच्छा है। और ये वर्ड ध्यान में रखना, डीलोकलाइजेशन। बाकी सब कॉपी कर ले बेटा। इन बिटवीन अगर किसी को हल्का फुल्का डाउट आता है तो यू आस्क। सर आपने वो जो कंपाउंड के नाम लिखे वो याद करने हैं क्या? याद नहीं करने, मतलब देखो ये सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ही हैं। और मैंने शायद जब IUPAC नाम वो बता रहा हूँ तब भी मैंने ये सब नाम लिखे होंगे, तो अगर हाँ अपने आप सर। याद हो जाते हैं तो इट्स गुड। लेट मी नो इफ यू हैव कॉपीड। यस सर, हो गया। सर नहीं हुआ था। हाँ सर। हो गया।
सर इसे इसमें फ्री रेडिकल क्यों बोलते हैं? उसको रेडिकल बोलते हैं बेटा, बाकी जो कैटायंस एनायंस आयंस होते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल रहते हैं। फ्री एक रेडिकल। हाँ, फ्री रेडिकल नाम दिया जाता है। Then beta, should I remove this? Yes. Now, difficult questions of basic strength. Please note, I am writing lone pair on nitrogen. In the exam, हो सकता है वो ये lone pair draw करके नहीं दे। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन after 3 bonds there will be one lone pair. ठीक है? Now listen. Whenever they ask, write the basic strength order. First check out of these three, for example, localized and delocalized. Can you guess? सर पहले में पहले में नो लोकलाइजेशन, लोकलाइज्ड उसकी जो डी दूसरा भी लोकलाइज्ड है। ये भी लोकलाइज्ड है सर। ये लोन पेयर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। सर डीलोकलाइज हो सकता है डीलोकलाइज। तो पाई कॉन्जुगेशन और ये तो डीलोकलाइज। ये तो डीलोकलाइज। अब आप ध्यान से एक चीज सुन लो मेरी। Whenever double bonded nitrogen is having lone pair, then please note that lone pair will not take part in resonance. Why? Consider pi bond. Consider pi bond. Of course, double, single, double. So these two actually participating in resonance, delocalization happening. Where is the lone pair of nitrogen? नाइट्रोजन का ये वाला ऑर्बिटल दिख रहा है। अगर ये ऑर्बिटल लेटर से px है, तो बताइए लोन पेयर उसी px में होगा जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जा रहा है, या दूसरे किसी ऑर्बिटल में होगा? सर दूसरे किसी ऑर्बिटल में होगा हाइब्रिडाइज। बिल्कुल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रह नहीं सकता। और px और दूसरा ऑर्बिटल अगर py हुआ, तो व्हाट विल बी एंगल बिटवीन px एंड py? 90 डिग्री। 90, दैट मींस परपेंडिकुलर। इज इट पॉसिबल कि परपेंडिकुलर वाला ऑर्बिटल इनके प्लेन में आकर के रेजोनेंस कर पाए? आंसर है नो। नो सर। सो दिस लोन पेयर डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस at as it is out of the plane, या not in plane of पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या सबको मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो ये लोन पेयर, इवन दो तुम्हें लग रहा है लोन पेयर सिंगल डबल, बट ये जा ही नहीं सकता क्योंकि तो परपेंडिकुलर इस पाई क्लाउड के। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? लोकलाइज्ड। जबकि ये सिंपल है, लोन पेयर सिंगल डबल। ये क्या है? डीलोकलाइज्ड। तो बताइए इन तीन में से विच वन इज लीस्ट बेसिक? सर थर्ड वन डीलोकलाइज्ड। ये तो क्लियर हो गया। देखो ये करने का फायदा क्या है कि दे विल गिव द ऑप्शन। अगर बाई चांस ऐसा करके तुमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट करा दिए, तो 2 में तुम गेस कर देगा। ठीक है, बहुत चांस है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर तुम कर पाए तो उसमें तुम्हारा कुछ सही हो जाएगा। ठीक है बेटा,
अब आते हैं इन दोनों में। अनफॉर्चुनेटली दोनों लोकलाइज्ड हैं, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ लगभग एक जैसी है, बट एक खास बात है, किसी बच्चे ने हाइब्रिडाइजेशन नाम लिया था स्टार्टिंग में। कोई बता सकता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस नाइट्रोजन का? सर sp3 है सर। sp2 ये sp3 है, बड़ा इसका स्टेरिक नंबर काउंट करो, अपने आप पता चल जाएगा। 1 2 3, जबकि 3 काउंट किया था गलती से। क्या चीज? 3 काउंट किया था गलती से, 3 बोल दिया। sp2। ओके नो इश्यू। sp2 तो बता सकते हो क्या बेटा कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है? मोर तो ये हमारे लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन हो गया। Which nitrogen will be more capable of holding electrons? More electronegative nitrogen or less electronegative? More electronegative nitrogen। तो more capable मतलब इसका लोकलाइजेशन ज्यादा of holding electrons। नहीं, ध्यान से सुनो, holding electrons। एक बात बताओ, भिखारी को किसका पैसा ज्यादा आसानी से दिख जाएगा? जो होल्ड कर सकता है, जो होल्ड नहीं कर सकता है, जिसका पैसा बाहर निकल रहा है, किसका पैसा आसानी से दिखेगा? जिसका बाहर निकल रहा है। तो भिखारी किसको रिच मान लेगा? बाहर निकलने वाला। तो समझ लो H+ एक भिखारी खड़ा है और उस देख रहा है किसका कौन ज्यादा अमीर है, तो उसकी नजर में कौन ज्यादा अमीर आएगा? जो अपने पैसे को छिपा कर रख रहा है, होल्ड कर रहा है, जो नहीं छिपा पा रहा है। तो नहीं छिपा पा रहा। बस आंसर। आई होप तुम लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे। ये जो चीप एग्जांपल मैं देता हूँ ना, ये एग्जाम हॉल में रिकॉल करने में बड़ा हेल्प करती है चीजें, तो इसको फटाफट कॉपी करो। सर ये सेकंड वाला पायरिडीन है ना? अरे वाह बेटा, ये तुमने दिल जीत लिया। पायरिडीन, ठीक है, इसको लिखेंगे लेस बेसिक, लीस्ट। कॉपी कर लो बेटा। डन बेटा। Yes sir। Yes sir। I'm just adding one more example in this, and that is ये, इसको पायरोल कहते हैं। Can you see, इस पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। This is also basic. Where will you place this compound in the order? Just guess. सर 8 में। वन के साथ ही। सर 1 के, सर 2 के तो आगे रहेगा क्योंकि sp2 है। अगर ये लेस बेसिक है
तो पीछे की तरफ जाएगा, मोर बेसिक है तो आगे की तरफ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? मोर बेसिक। मोर बेसिक। पहली चीज तो ये देखो, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है इसके पास कि डीलोकलाइज्ड है? देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ लिखा नहीं है तो एच माना जाएगा। हाँ सर। बोलो। तो लोकलाइज्ड है कैसे पता चला? सर, क्योंकि तो सिंगल बॉन्ड लोन पे सिंगल बॉन्ड या लोन पे सिंगल बॉन्ड। अरे कहाँ लोन पे सिंगल डबल दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा हाँ सर, उस लाइन। हाँ सर, वैसे ये मैंने यार सिर्फ कॉमन एडजस्ट सेंस वाली चीजें गलती कर दी तुमने। किधर गलत कर दिया तुमने? लोन पे सिंगल डबल, और ये इधर से कहता है मैं इधर भी जा सकता हूँ। सोचो ना, तो भिखारी उसके पैसे को छीन रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझा सर डी तो ये इसका पैसा ज्यादा लूट जाएगा या कम लूटेगा? ज्यादा ज्यादा। तो इसकी बेसिकेशन कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। अरे यार तुमसे पैसे अगर छीन लिए जाएं तो कम तुम्हारे पैसे, ऐसा सोचो घर के लोगों ने पैसे छीन लिए और भिखारी इंतजार कर रहा है उसको मिले कुछ। तो बताओ भिखारी को कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? ज्यादा कम मिलेगा। कम मिलेगा। घर के लोगों ने ले लिया ना पैसे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो। एक तो ये स्टाइल से आप कर लो, दूसरा ये रहता अगर जिन बच्चों को एरोमेटिसिटी आती है उनके लिए, जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप बनता है और इसको एरोमेटिक बोलते हैं। जिन बच्चों को ये आता है उनके लिए 4n+2 पाई 6 पाई का इलेक्ट्रॉन्स का लूप, इसको एरोमेटिक बोलते हैं। दैट मीन्स लोन पेयर इज नाउ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, सो दैट compound will not be able to release lone pair because it is part of stability of compound, aromaticity. That is why it becomes least basic. क्या मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। ये पेंटागन है बेटा, हेक्सागन को भी बोलने की कोशिश करो। ये पेंटागन है, इस पे ओनली 5 मेंबर्स आते हैं। इसको कॉपी कर लो बेटा। डन। सर एक मिनट। डन सर। ओके, अब आप देखो एक और कंपाउंड इसमें इंट्रोड्यूस करता हूं मैं, ध्यान से देखना। यहां पर लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है। बताइए बेटा इसको कहां प्लेस करोगे ऑर्डर में? मैं ऑडिबल? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आई थॉट कि सुनाई नहीं दे रहा इसलिए तुम लोग बोल ले रहे हो। मैं हेल्प पायरोल के साथ सर मैं हेल्प करता हूं। सबसे पहले तो तुम ध्यान से देखो कि इस फैमिली में
there are two members carrying lone pair. Am I correct? Yes. हाँ सर. पहले तो घर में पता करो घर में सबसे अमीर कौन है, उसका कंपैरिजन दूसरे फैमिली के सबसे अमीर पर्सन से होगा. तो यहां पर इन दोनों में कौन रिच है पहले तो ये पता करो. तो रिच वही होगा जिसका लोन पेयर क्या हो बेटा? लोकलाइज्ड. बताइए इन दोनों में से किसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है? सर डबल बॉन्ड लेफ्ट एन वाले. लेफ्ट वाले का. ये लोकलाइज्ड है और ये डीलोकलाइज्ड है. यानी कि कुछ भी हो जाए तुम्हारा कंपैरिजन अब लोकलाइज्ड का ही करना है सबके साथ. तो बताओ इसको कहां रखें? बोलिए बेटा. बिलीव में ज्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे कि ये दो लोकलाइज्ड थे तो और ये डीलोकलाइज्ड थे, तो ऑफ कोर्स 3 और 4 से तो पहले आएगा. यही बोलना चाहते होगे. हाँ सर. बट एक मैजिकल चीज आपको बताता हूं कि भले ही इसका लोन पेयर जो लोकलाइज्ड है वो sp2 वाला है, लेकिन ये इसके जैसा sp2 इसलिए नहीं है क्योंकि इस लोन पेयर नाइट्रोजन पे कोई और अपना लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू ड्रॉप करता है. क्या तुम डिफरेंस समझ पाए बेटा? कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एक नाइट्रोजन पे लोकलाइज्ड लोन पेयर है प्लस कोई उसका दूसरा फ्रेंड रेजोनेंस करके अपना लोन पेयर भी उस पे ड्रॉप करता है. ये एक स्पेशल सिचुएशन में फॉल करता है और ये हाईली बेसिक कैटेगरी में आता है. क्यों हाईली बेसिक है समझ में आया बेटा? उसका खुद का लोन पेयर तो लोकलाइज्ड है प्लस एक पड़ोसी भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर जाता है वाया रेजोनेंस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर वो भी लोकलाइज्ड है. नहीं वो लोकलाइज्ड नहीं था लेकिन वो अपना लोन पेयर इस पे ड्रॉप करता है यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सडनली इंक्रीज कर जाती है. ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है. अब इसके पापा को देखो, मतलब इससे भी बड़ा, इससे बड़ा सुनो. ये देखो पहले तो तुम मेरे को ये बताना कि इस कंपाउंड में जो मैं लिख रहा हूं इसमें विच साइट इज मोस्ट बेसिक साइट? इस फैमिली का सबसे बेसिक नाइट्रोजन कौन सा है बताओ? एक NH2, एक NH2, एक डबल बॉन्ड NH वाला कौन सा? आवाज ठीक से आई नहीं बेटा. क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? सर बोला है. मैंने बोला है कि आई एम राइटिंग अनदर कंपाउंड. कैन यू टेल मी विद इन द फैमिली देयर आर 3 नाइट्रोजन, विच नाइट्रोजन विद इन द फैमिली इज मोस्ट बेसिक? डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड. ये वाला. व्हाई? बिकॉज इट इज लोकलाइज्ड. Now you have to compare this with all other compounds. So this is the special example. Why special? Because it falls under the category of this one. कि इसकी खुद का लोन पेयर तो लोकलाइज्ड है, एट द सेम टाइम इसका कोई फ्रेंड है जो अपना लोन पेयर भी ड्रॉप कराता है वाया रेजोनेंस. क्या समझ पा रहे हो? Now what is the difference between these two? इन दोनों में आपस में देखोगे तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? ऊपर वाला. क्योंकि उसके पास दो ऐसे दोस्त हैं जो अब कुर्बानी देते हैं अपने लोन पे. क्या आप समझ पाए? हाँ सर. तो आप सोचिए ना, एक क्वेश्चन की डिस्कशन में हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स लर्न कर लिए. तो इसको भी आप लिख लो बेटा.
सर तो फाइनल ऑर्डर क्या होगा ये दोनों को इंक्लूड करके? 1, इसको अगर मैं 0 मान लूं तो 0 ग्रेटर देन 1। नहीं सॉरी, 1 तो यहाँ से शुरू किया था ना, अभी इसको क्या लिखूं यार, 0 लिख लो फिर माइनस। ठीक है। ठीक है सर, चलेगा। सर -1 वो 3 हाँ ये ठीक है। इसका नाम गुआनिडीन है बेटा, कोई नाम की जरूरत नहीं है, दे विल नेवर आस्क नेम। देखिए आई अंडरस्टैंड कि कम टाइम में इट इज डिफिकल्ट टू लर्न दीज थिंग्स, बट अगर आप फोकस्ड होंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा स्टाइल से मैं बता रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहेगा चीजें। Let me know if you have copied. Huh? सर ये सेम पैटर्न हम दूसरे कंपाउंड्स में भी लगा सकते हैं या सिर्फ अमाइड वालों के लिए? आई टोल्ड यू ना कि ये एमाइंस अपने सिलेबस में है, सो इसीलिए एमाइंस का डिस्कशन कर रहे हैं, बट सिमिलर कॉन्सेप्ट्स कहीं भी लगा सकते हो, बट कुछ और होगा ही नहीं। नाइट्रोजन इज द बेसिक साइड मोस्ट ऑफ द टाइम। Somebody is saying in 0 figure how you got delocalized and localized. It's very easy. This is our 0 figure. तो यहाँ पर lone pair single double, that means this lone pair is moving, and here this is the case where I explained earlier. Lone pair having, हाँ बताया था मैंने, कहीं तो यहाँ लिखा था ना, somewhere I wrote. I gave the example. नहीं सर आगे था वो, आगे लिखा कहीं यहाँ कहीं मैंने एक्सप्लेन किया, ये यही था क्या? हाँ, सो देयर आई टोल्ड यू कि इफ नाइट्रोजन इज डबल बॉन्डेड एंड सेम नाइट्रोजन इज हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, देन दैट लोन पेयर विल नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ये मैंने बताया था। अच्छा यही तो बताया है, इसी का तो डिस्कशन चल, सॉरी चला गया था। रिमूव कर दूं बेटा इसको? हाँ सर हो गया। Guys, although बेसिक स्टैंड में और भी कई सारी चीजें हैं, बट मोस्ट ऑफ थिंग्स वी हैव कवर्ड, तो इसको यहीं पर होल्ड पे रखते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस दूंगा तो उसके थ्रू एक आध और चीजें बताऊंगा। उसके अलावा द क्वेश्चन विच यू मेक इट इन द एग्जाम, वो आता है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी ये पढ़ाया गया है आपको कहीं पर केमिकल बॉन्डिंग में? So we just canonical forms and like we try to analyze which is most. नहीं सर ये नहीं सर। चलिए, तो मैं आपको 3 मेन रूल्स लिखाऊंगा जिससे 90% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। स्टेबिलिटी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है?
सो 3 रूल्स पहले लिख लो और बिलीव मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू हैंडल। ठीक है, शॉर्ट में मैं करवा देता हूँ, मतलब पूरा रूल भी नहीं लिखाता हूँ। तो पहला रूल है चेक ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स, एंड बिलीव मी ये सेकेंड्स में चेक किया जाता है, ये नहीं कि पूरा लगा निकालने बैठ गए। चेक ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोर ऑक्टेट implies more stability. Sir, more completely filled octet implies more stability. More octet का मतलब है if there are more number of atoms with complete octet. Okay, sir. ठीक है, तो वो थोड़ा लैंग्वेज आप अपनी समझ लीजिए, अपनी स्टाइल से आप ले लो, कोई इशू नहीं। देन फिर ऐसे लिखनी, if we fail on the basis of rule 1, ये कहना चाहता है रूल 2 तब तक यूज नहीं करना जब तक कि रूल 1 से तुमको आंसर ना मिले। इफ यू गेट योर आंसर बाय रूल 1 देन यूज रूल 1 ओनली, डू नॉट मूव टू रूल 2। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, देन चेक फॉर्मल चार्जेस। जिन बच्चों को नहीं मालूम है फॉर्मल चार्जेस क्या होते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस जो भी दिखे वही फॉर्मल चार्ज। Less formal charges implies more stability. Now third में क्या है, if we fail on the basis of first 2 rules, then check electronegativity of atom. Negative charge on more electronegative implies more stable. मतलब positive charge on less electronegative. So simple. Anyone having any confusion? या clear है ये? सर फॉर्मल चार्जेस क्या है? चार्जेस जो प्लस माइनस तुम्हें दिख रहा है उसी को फॉर्मल चार्जेस मान लेना। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाता है व्हाइल टीचिंग लूज स्ट्रक्चर्स, बट अगर नहीं आता है तो जस्ट कंसीडर जो भी प्लस माइनस दिखाई दे वही फॉर्मल चार्ज। ठीक है, हाँ सर समझ। सर मतलब डेल्टा नहीं ना? नहीं प्लस माइनस होगा, डेल्टा नहीं होगा। डन बेटा, रिमूव कर दे इसको। यस सर। सर एक सेकंड, आप पिछले वाले स्लाइड पे जा सकते हो? यस सर, डन। अच्छा, जानते हो इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप कौन सा है जिसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, बताइए? ये पहला वाला है। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबको पता है ना कि क्लोरीन ज्यादा है, ऑक्सीजन है ना। इसमें सबसे ज्यादा टाइम है, इसका जुगाड़ बता। देखो, कार्बन पे अगर प्लस आ जाए कभी भी तो समझ लेना ऑक्टेट इनकम्प्लीट। याद रहेगा? यस। कार्बन पे प्लस मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्सीजन पे अगर प्लस है और वो 3 बॉन्डेड है, यानी यहां पर 3 बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर एक बॉन्ड दिखाई दिया, 2 बॉन्ड नहीं होंगे, 1 होगा या 3 होगा, तो यहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है।
जो ऑक्सीजन की नॉर्मल बॉन्डिंग होती है वो ये होती है, तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। 3-4 ही अपने सिलेबस में एटम्स होते हैं जिनमें हमें डील करना होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की बात आती है, 4 बॉन्ड्स हैं और प्लस है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। 3 बॉन्ड है विदाउट एनी चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 बॉन्ड है बट माइनस चार्ज के साथ है, ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर 2 बॉन्ड्स हैं बट क्या आ गया, प्लस, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इतना याद रखोगे ना तो सारा काम हो जाएगा। जितने भी सेकेंड पीरियड के बाद वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, इनके पास इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि अगर इनके ऊपर प्लस भी आ जाए तो भी तुम समझ लेना कि ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या आप समझ पा रहे हो? इतने अमीर है इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के कि इनमें ऑक्टेट का टेंशन नहीं रहता। टेंशन किसको होगा? कार्बन को। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक भी कम पड़ गया बेचारा कटोरा लेके खड़ा हो जाता है सिग्नल को। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तुम हाँ बोलो बेटा, somebody saying something. आओ इधर आ। आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, आप अपना दिमाग लगाइएगा अच्छे से। सर आप प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं सर। 1 मिनट, दिस इज फर्स्ट वन। एक और बात, मैं लोन पर दिखा रहा हूं बट हो सकता है एग्जाम में नहीं दिखाए, तो तुम्हें करना आना चाहिए ना वो स्टाइल की। कार्बन इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, फिर 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, फिर 1 इसके साथ, कितना बच गया वो लोन पे। सिंपल। सर सेकंड इसमें सी पे नेगेटिव चार्ज है। क्या बेटा? सेकंड इसमें सी पे नेगेटिव चार्ज है ना? यस, जो भी ये बड़ा सा बार दिख रहा है वो नेगेटिव चार्ज। न गेट दी ऑर्डर, इसको कर लो और फिर उसके बाद रेस्ट करना। बहुत सारा आज भी थियरी हमने पढ़ लिया है, इसको रिवाइज करना अच्छे से। आई विल ट्राई टू गिव यू शीट। सर आप एक बार वो आपने वो ऑक्टेट का स्लाइड दिखाया था वो दिखा सकते हैं? अच्छा, ये स्लाइड पीछे वाला दिखाना है मुझे सर? नहीं सर, वो आगे वाला आपने वो सारे ऑक्टेट का दिखाया था ना जुगाड़। ये वाला, सॉरी, हाँ इसको भी चाहिए तो नोट कर लो आप। सर हो गया, एक बार वापस वो वाला स्लाइड पे क्वेश्चन। ओके, ठीक से रूल्स को यूज करना। बिलीव मी, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। Somebody is asking, sir, then you will share an assignment with us after this class. नहीं बेटा, मैं बनाऊंगा ना, क्योंकि जितना पढ़ाया है उसके हिसाब से शीट, जैसे पिछली बार मैंने आपको भेजा था उसी तरह से बनाकर। क्योंकि इसके लिए कोई वो नहीं है ना, वो जितना आपको पढ़ाया गया उसके हिसाब से शीट दी जाएगी, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व। You can write your answer in chat box, beta, whatever you are getting.
1 greater than 2 greater than 3 greater than 4. Write this answer, then take rest. गाइस एक जुगाड़ बताता हूँ, एक एक्स्ट्रा जुगाड़। अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, ऑक्टेट वगैरह देखने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो उस केस में एक लाइन जो फेल हो सकता है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम आंसर सही हो जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड्स वो सबसे ज्यादा स्टेबल। So this is like a contingency plan, right? It's not foolproof, right? Which plan you are ज़्यादा bonds वो ज़्यादा वो फुल प्रूफ नहीं है बेटा, भाई तो बोला इट मे फेल, बट इफ यू डोंट हैव टाइम, लेट अस से यू हैव 3-4 सेकंड्स और तुम्हें गेस करना है हल्का सा एंड ऑप्शंस में देखना है या गेस वर्क ही लगाना है, तो तुमने देखा है सबसे ज्यादा बॉन्ड्स किसमें है, तो बोला 1 and 4 सबसे ज्यादा बॉन्ड्स है, तो जिसमें 1 and 4 पीछे है वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। सो सिंपल। गेटिंग द आइडिया? Yes. हाँ सर, ऑनलाइन होने के बाद तो सर मतलब एग्जैक्ट 2 घंटे में एग्जाम खत्म हो जाता है। 3-4 सेकंड्स रहे और सिर्फ ऑक्टेट काउंट करना रहे ना, तो 2 मिनट करके मतलब ऑफलाइन में काउंट भी कर लेते। चलो ये मैं आंसर बता दूं बेटा, बहुत लोगों ने आंसर लिख दिया वैसे। सबसे पहला रूल है ऑक्टेट वाला, उसके हिसाब से जाओगे तो इसमें ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, इसमें भी ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, बिकॉज नाइट्रोजन प्लस है बट 4 बॉन्ड्स हैं। इसमें ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, इसमें ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब 2, 3 विल बी आफ्टर 1 and 4 and now compare 1 and 4 since we have failed on the basis of rule 1 and 4 के बीच में, then what is the next rule? Formal charges भी equal है। What is the next rule? Electronegativity। किस केस में नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? आंसर है 1 में, तो 1 is greatest। 1, yes sir. Then 4। Now between 2 and 3 we have failed on the basis of rule 1 because दोनों में एक का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। What is the second rule? Formal charges, equal number of formal charges दोनों में, rule failed। Third rule electronegativity, किसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसमें ऐसा है? थर्ड में। This is the simple answer। Clear? So those who have got correct answer वो खुश हो जाएं, इसका मतलब बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं और सब सही होगा। ठीक है, रिवाइज करना बेटा, बहुत सारा थियरी आज भी मैंने पढ़ाया हुआ है, इसको रिवाइज करना, थोड़ा सा शॉर्ट नोट जैसा कुछ बना लेना सो दैट चीजें आपको याद रहती हैं। ठीक है, Bye sir, thank you. Yes, sir. चलिए ओके बेटा, बाय। मैं Thank you, sir. Bye, sir.